Good morning, everyone. So, students, we are proceeding chapter number 22, financial statements with adjustments, and we have discussed number of adjustments. Yesterday, we have discussed provision for bad and doubtful debts. Do you remember? First, we have talked about the bad debts, adjustment of the bad debts. Then we have talked about the provision for bad and doubtful debts. And today we will talk about provision for discount on debtors. So, most of you are attending the class first time. I'll take 2 minutes to explain this matter. You know, when bad debts takes place, so your debtor reduces. Yes, please try to focus. What am I telling? When bad debts takes place, your debtors reduces. Bad debts होने से debtors कम हो जाते हैं. Now we know that every year this happens. This is the practice going on that some of the debtors they turn bad and they don't pay money. So this practice is taking place year after year. So when I know this thing well in advance, so according to my prudence concept, I started making provisions, and that is mandatory. Okay, so I make the provision for bad and doubtful debts. Provision is kind of गुल्लक you are creating from your statement of P&L. ओके आप अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L के डेबिट में दिखाते हैं, एक तरह का एक्सपेंसेस हो जाता है आपका कि आपके पास प्रॉपर है, सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, तो आप P&L के डेबिट में दिखा के एक रिजर्व एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है. नाउ दिस प्रोविजन विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन यू हैव अ बैड डेट्स एंड ऑल. ठीक है. तो हाउ टू क्रिएट दिस प्रोविजन, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एंड आई विल टेक वन इलस्ट्रेशन टुडे विच विल एक्सप्लेन द प्रीवियस टॉपिक ऑल्सो एंड टुडेज ऑल्सो. ओके. Now we will talk about the provision for discount on debtors. Well, you know it better that we ask for the discount, yes or no? When we purchase the things from somebody, means the seller, we generally ask for the discount, and sometimes they give the discount. So you have to think from business point of view, and we have to pass the entries in the books of business. Am I right, students? So we have to think from business point of view. Being a businessman, you have to provide discount sometime. I don't say that always and on everything you provide discount, but we provide discount. So that is also a kind of expenses for you. You are supposed to get 500, but because of discount you are getting only 450. 50 rupees less you are getting. 50 रुपए कम मिल रहे हैं. ठीक है. तो I know that every year I have to provide the discount. So why don't I make a provision like bad debts? जैसे हमने बैड डेट्स का प्रोविजन बनाया, तो बेटर आई मेक द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स ऑल्सो. इजंट इट पॉसिबल? पॉसिबल है. ठीक है. तो हम इसके लिए भी प्रोविजन बनाते हैं. नाउ व्हाट इज द सीक्वेंस, स्टूडेंट्स? व्हेन वी हैव all three kind of adjustments are given in the question. The first one is your bad debts, then second one is provision for bad and doubtful debts. Okay, and third one is provision for discount on debtors. All three kind of adjustments are given in the question, so we have a sequence to do. Okay, first of all we will be dealing with bad debts. Those who are attending the class first time, you should also try to understand. It's very simple. Okay, क्योंकि मैं beginning से ही मैंने शुरू किया है. ठीक है. तो you can understand that. So first we deal with bad debts, then we take provision for bad and doubtful debts, and at last we prepare the provision for discount on debtors. So these two adjustments we have already discussed. Today we are going to do the third one, but I'll take a question where everything will be there. Is that clear? So you can take illustration number 7. It's page number 22.26. Those students who are staying at home, you can take out this one. So this is including everything. If you have different book, so don't worry, I will write a statement on the board. You don't have to worry. Okay. So here we have the extract of the trial balance. Trial balance is given here. So I'm preparing here. It's your debit side, this is your credit side. Just quiet please. Bad debts.
Bed debts are 3,600. Then we have provision for bad and doubtful debts. That is 7,500. Salary debtors is 2 lakh. Alright. Now certain adjustments are given to you. The first adjustment is write off further bad debts. It's 2,000. Okay. Second one, provision for doubtful debts is to maintain at 5% on debtors. This is what provision you have to maintain. Third one, create provision for discount on sundry debtors at 3%. Create provision for discount on debtors at the rate of 3%. Is that clear? So this is my statement. Those who are attending the class first time, I have discussed a formula, and the formula is Weber. Look here, the formula is bad debts plus further bad debts plus new provision minus old provision, right? Whatever comes we show in the P&L account. Okay, although we have complete video of that, you can watch today, but at this moment for proceeding the question you should understand it. Just keep it in your mind, right? You may note it down. Yes, bad debts plus further bad debts plus new provision minus old provision. Okay, now understand this statement. Here we have a bad debts, provision for doubtful debts. These are the provision which we have made during last year. Yes, please. Which provision is this? These are the provision which we have made last year. Okay? And all the provisions are having credit balance, so we have shown in the credit side, and these are the sundry debtors. Now one point, students, I'm reminding you, whatever is given in the trial balance, that is already adjusted and that comes at one place only. Is that clear? ठीक है, समझ आ रहा है तुषार? ये पहले कर चुके हैं. हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बोलो ना. हाँ, जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया है दैट कम्स एट वन प्लेस एंड द एडजस्टमेंट्स ऑलवेज कम्स एट 2 प्लेसेस. ठीक है, एडजस्टमेंट्स हमेशा कितनी जगह आएंगे? 2 जगह आएंगे. ओके, here the bad debts are given 3,600. It means our debtors were more. हमारे debtors कितने थे? 2,03,600 के थे पहले. बैड डेट्स हो गए, मैंने डेटर्स में से माइनस कर दिया, तो बैड डेट्स मेरे यहाँ आ गए. बैड डेट्स अकाउंट हमने बनाया होगा लेजर में वहाँ से, और डेटर्स हमारे कम होके 2 लाख रह गए. इज दैट क्लियर? समझ आया? ओके, नाउ ही इज टेलिंग इन द क्वेश्चन दैट राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, कि और बैड डेट्स हो गए आपके साल में. ठीक है, और हो गए तो कहाँ से एडजस्ट करेंगे हम? हमारे पास प्रोविजन है, उसमें से एडजस्ट करेंगे. ठीक है, एंड उसके बाद हम प्रोविजन बनाएंगे. प्रोविजन बाद में बनेगा, पहले कौन सी एडजस्टमेंट करनी है हमें? कौन सी करनी है? अभी लिख के बताया था ना मैंने सीक्वेंस में. सबसे पहले कौन सी एडजस्टमेंट डील करनी है? बैड डेट्स वाली. उसके बाद प्रोविजन का करेंगे. ओके, नाउ दिस प्रोविजन इज देयर 7,500. मैथमेटिकली देखते हैं पहले. 7,500 था मेरे पास, जिसमें से मुझे क्या करना है? बैड डेट्स को कवर करना है. बैड डेट्स के लिए तो बनाया है. 3,600, you have 3,900. check the calculations. okay, right? तो ये अभी मेरे पास प्रोविजन में क्या है? बचा हुआ है. do you agree? now he is telling further bad debts. ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता लगा एक और डेटर इंडिया छोड़ के चले गए, नहीं आएंगे अब यहाँ पे वापस,
तो उनके पैसे भी डूब गए, 2000 रुपीज लेने थे. तो दिस इज माई फर्दर बैड डेट्स. तो दिस बैड डेट्स विल ऑल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रोविजन. ओके, तो अभी मेरे पास 3900 है, 2000 मैंने कवर कर लिया. नाउ आई हैव 1900 रिमेनिंग इन द provision for bad and doubtful debts which I have made last week. Alright, समझ आ गई ये बात. अब मुझे क्वेश्चन में कहा है, यस क्वेश्चन में कहा है नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, कौन सी एडजस्टमेंट करनी है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स वाली करेंगे. ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में कहा है कि क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स. ठीक है, हमें नया प्रोविजन क्रिएट करना है. नया प्रोविजन किस पे क्रिएट करना है, डेटर्स पे. डेटर्स कितने हैं आपके, यस एवरीवन. आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. अगर आप मुझे छोड़ के किसी और दुनिया में चले जाएंगे सोचने के लिए तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड. डेटर्स कितने हैं, लुक हियर एंड टेल मी. 2 लाख के डेटर्स हैं, इसको यही छोड़ रहे हैं हम, एडजस्टमेंट्स यहाँ कर रहे हैं. ओके, 2 लाख के डेटर्स हैं. लुक हियर, क्या ये 3600 इसमें से माइनस करूं, बता चुकी हूं मैं आपको, नहीं करना है. क्यों नहीं करना है, इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड. ओके, अब आपके बैड डेट्स और हो गए थे बाद में 2000, तो इससे आपके डेटर्स कम हुए या नहीं हुए, इज दैट विजिबल टू यू बेटा, दिखाई दे रहा है आपको इधर, डेटर्स कम हुए कि नहीं, हो गए. तो 2 लाख नहीं है अब मेरे डेटर्स, क्योंकि 2000 ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एज बैड डेट्स हो गए हैं, जिसको कि मैंने, आप 2 लाख में से 2000 माइनस करेंगे, व्हाट कम्स 1,98,000. इज दैट ओके? ये आपके डेटर्स बचे हुए हैं. डू यू एग्री? समझ आ रहा है? 2 लाख थे, 2000 और डूब गए, कितने बचे, 1,98,000. ओके, अब वो कह रहा है कि क्रिएट 5%. अब ये डेटर्स हैं, अब मेरे क्लोजिंग डेटर्स हैं, तो इन डेटर्स पे और हो सकता है कि और नहीं आए. तो ही सेड कि क्रिएट प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5% ऑन दीज डेटर्स. तो अब मैं क्या करूँगी, इस पे 5% का प्रोविजन क्रिएट करूँगी. इज दैट ओके? क्या आ गया, चेक द कैलकुलेशन, 9,900. ठीक है, तो दिस इज माई व्हाट, न्यू प्रोविजन. प्रोविजन क्या है, दिस इज वन थिंग, और आप P&L से कितना चार्ज करेंगे दैट इज डिफरेंट थिंग. कैसे, लेट अस सी. प्रोविजन आ गया कैलकुलेट करना, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस कर देंगे, जो आएगा बचेगा उस पर आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, दैट इज 9,900. सो आई नीड 9,900 नाउ, राइट, टू क्रिएट द प्रोविजन. वेल, कहाँ से लेंगे, कहाँ पे बनाते हैं हम प्रोविजंस, कहाँ बनते हैं, कहाँ बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते हैं प्रोविजंस. तो मैं कितना चार्ज करूँ प्रॉफिट एंड लॉस से, 9,900. दोज हु हैव अटेंडेड द क्लास, हमारे पास कितना बचा हुआ है पिछली गुल्लक में, लास्ट ईयर का जो प्रोविजन था इट वॉज 7,500. 3,600 मैंने ये पहला जो बैड डेट्स था वो रिकवर किया. देन फर्दर बैड डेट्स 2,000 आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम देयर. तो आई हैव 1,900 स्टिल रिमेनिंग विद मी. ठीक है, और मुझे कितना चाहिए, नया प्रोविजन कितना है मेरा, 9,900. तो 9,900 में से 1,900 हम माइनस कर देंगे, तो दैट कम्स 8,000. तो मैं P&L से कितना लूँ, 8,000 आई विल शो यू. इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ये मैंने मैथमेटिकली बताया आपको. ओके, अकाउंट्स के तरीके से करें. यस वैभव बेटा, इसको बाद में देखना, मैंने कई बार बताया, उसको बाद में समझना, समझ आ जाएगा. पहले ये चीज़ समझो, ये समझ आ रही है, उससे मैच करोगे तो अभी कुछ नहीं होगा. आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो आप कहीं से भी देख लेंगे. ठीक है, so this philosophy is clear what I have done. So once again, those who have looked here and there, this is your trial balance. The item of trial balance comes at one place, adjustments comes at 2 places, and here we have the provision of the last year 7,500, जिसमें से आपने 3,600 बैड डेट्स इनिशियली माइनस किया.
फर्दर बेड डेट्स हुआ 2000, वो भी माइनस किया, 1900 मेरा अभी भी पिछले प्रोविजन का बचा हुआ है, ठीक है। दिस विल हेल्प मी टू क्रिएट अ न्यू प्रोविजन। नया प्रोविजन हम कैलकुलेट करेंगे, कौन से डेटर्स पे करते हैं, बेड डेट्स हटाने के बाद, ठीक है। तो बेड डेट्स कौन से हैं मेरे, ये तो ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। तो दिस 2000 आई विल बी रिड्यूसिंग फ्रॉम द डेटर्स, दिस इज 1,98,000, 5% का प्रोविजन क्रिएट किया, दैट इज 9,900। प्रोविजन तो आपका 9,900 रहेगा, इसका नाम क्या है, न्यू प्रोविजन। दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट P&L से कितना चार्ज करेंगे, दिस इज डिफरेंट, आई टोल्ड यू। P&L से चार्ज कितना करेंगे, जो आपके पहले पॉकेट में पैसे रखे हैं उनको इसमें से एडजस्ट कर लेंगे। 9,900 मुझे बनाना था, जिसमें से 1,900 मेरे पास ऑलरेडी रखा है, तो 8,000 रुपीज आई विल बी covering from P&L's debit side. Is that clear? So this we have done mathematically. Now I have told you this formula, do you remember? ये सब मैं रब कर रही हूँ, you know the calculations now, okay? So we prepare P&L account. The question is how to show all these things in your financial statement. तो ये सब चीजें कहाँ जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। दिस इज व्हाट, बेड डेट्स। एडजस्टमेंट शुरू होती है कहाँ से, बेड डेट्स। कितने हैं बेड डेट्स, टेल मी एवरीवन, कितने दे रखे हैं बेड डेट्स आपको, 3,600। देन फार्मूला से फर्दर बेड डेट्स मीन्स कोई और बेड डेट्स हुए वो भी जोड़ दो इसमें। सो दिस इज फर्दर बेड डेट्स, हाउ मच, 2,000। कितने हो गए टोटल बेड डेट्स, 5,600। इज दैट ओके? द फार्मूला सेज प्लस न्यू प्रोविजन, नया प्रोविजन कितने का बना है, 9,900 का। प्रोविजन 9,900 का था, डोंट फॉरगेट, ओके। कितना हो गया ये, check the calculation, 15,500, right? The formula says minus old provision. How much old provision? 7,500. It's 8,000. Have you understood this? Clear to everyone? ये 8,000 आ गया, ठीक है। अब इसको तीसरे तरीके से और समझ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। आपने एक गुल्लक बनाई, किस लिए बनाई, कि कुछ भी एक्सपेंसेस, फ्रेंड्स की पार्टी यहाँ वहाँ खर्च हो जाते हैं, ठीक है। वेल 7,500 वर देयर इन योर गुल्लक, ठीक है। आपकी पॉकेट मनी जो आपने सेव की हुई है कितनी है, 7,500। एक पार्टी थी, उसमें आपके कितने एक्सपेंसेस हो गए, 3,600, ठीक है। कितने बचे आपके पास, वी हैव रिमूव्ड इट, 3,900 बचे, ऑलराइट, क्लियर। अभी कुछ दिन के बाद दूसरे फ्रेंड का बर्थडे था, फिर वहाँ पार्टी में आपके खर्च हो गए कितने, 2,000 वहाँ खर्च हो गए, ठीक है। 3,900 बचे हुए थे, 2,000 दूसरी पार्टी में खर्च हो गए, अब कितने बचे, 1,900 अभी आपकी पॉकेट में है, ठीक है। तो आपने डिसाइड किया कि ये पार्टियाँ तो रोज़ होती रहती है, खर्चे होते रहते हैं, तो मम्मी पापा से कितना मांगा जाए, ठीक है। तो आपने ऐसे ही एक अमाउंट कहा कि मुझे तो 9,900 रुपीज़ चाहिए। ये मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, अदरवाइज आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास तो 9,900 रुपीज़ होने चाहिए, मैंने कैलकुलेट किया है, राइट। तो आपने कहा मम्मी मुझे 9,900 रुपीज़ चाहिए। मम्मी ने कहा किस लिए चाहिए, खर्चा है, ये पूरे खर्च हो जाएंगे, यस पूरे खर्च हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा पॉकेट दिखाओ। आपने पॉकेट दिखाई तो उसमें से क्या निकला, 1,900। शी सेड ओके, आपको 9,900 चाहिए है ना, मिल जाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन मैं कितने दूंगी अब, 8,000। क्यों, इसको भी तो मिलाओ, ये भी तो मेरे ही दिए हुए हैं। तो कितने हो गए आपकी पॉकेट में, 9,900। इज दैट ओके? तो इसके अकॉर्डिंग प्रोविजन मेरा कितना बन गया, 9,900 का हो गया ना प्रोविजन नेक्स्ट ईयर के लिए जो आपके खर्चे हैं, ठीक है। लेकिन मम्मी ने कितना दिया आपको, 8,000। क्यों, क्योंकि मम्मी इज वेरी इंटेलिजेंट। अगर वो 9,900 दे देती तो 1,900 आपके पास एक्स्ट्रा आ जाते, उनका क्या करना था, आपको वेस्ट करने थे इधर उधर। व्हाई, आर यू गेटिंग? सो दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस हियर, ऑलराइट। स्टोरी समझ आ गई है? भूल जाए तो इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये
अभी हमने क्या किया है, जो हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव डन टिल दैट पॉइंट, ये सब हमने कल किया था। तो आज जो हमें करना है दैट इज ओके, नाउ फर्दर ही इज टेलिंग इन द क्वेश्चन दैट create a provision, we have written here, create a provision of discount on debtors at the rate of 3%. So let the things be here only, जहाँ है वैसे ही रहने दे. And which is the place of this adjustment? Third one. First we have learned bad debts का adjustment, then we have learned provision for bad and doubtful debts we have discussed. Now we will talk about the provision for discount on debtors. ठीक है, कितना करना है? 3%. Now tell me students कि what is the amount of debtors with you. चलिए एक चीज और, इसको करने से पहले आपको बहुत within 1 minute you will understand. जो आज तक हमने किया है ये, how to present it at second place. Adjustments comes at 2 places. So we have shown in the P&L, but still balance sheet is lying. Okay, तो आप balance sheet create कर रहे हैं. बैलेंस शीट में किधर आएगा आपका? एसेट साइड. ओके, डेटर्स आर हियर. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स? 2 lakh. डेटर्स आर 2 lakh. Bad debts are 3,600. So will we reduce it from here? 3,600 माइनस करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी रिड्यूस है, ऑलरेडी एडजस्ट हो रखे हैं. नाउ वी हैव फर्दर बैड डेट्स. ऑफ कोर्स दीज बैड डेट्स वी विल बी रिड्यूसिंग. तो ये हमने फर्दर बैड डेट्स यहाँ पे माइनस कर दिए. ठीक है, सो वी हैव 1,98,000. राइट स्टूडेंट्स? तो हमने जो प्रोविजन बनाया था, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, वो इन डेटर्स पे बनाया था. बन गया प्रोविजन. व्हाट इज द न्यू प्रोविजन? न्यू प्रोविजन कितना बनाया है? 9,900. Do you remember? So this new provision we will be reducing from debtors. 9,900 आप इसमें से माइनस करेंगे. It's 1,88,100. ठीक है, let it be like this. Check the calculation. Okay, so these are my debtors right now. Is that clear? Now this question is completed. Okay, now the third adjustment we are going to do, create provision of for discount on debtors. अब ये मुझे प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट का. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ लोग डिस्काउंट मांगते हैं, हमें उनको देना है. कौन से डेटर्स पे बनेगा? जो बचे हुए डेटर्स हैं. कौन से हैं? 1,88,100. ओके, सो दीज आर 1,88,100. This is the amount of debtors now. Okay, what is the percentage? 3%. 3% का आप इस पे प्रोविजन बनाएंगे. Just check the calculation. 5,643. Okay, is that clear? This is what 5,643 is your provision for discount on debtors. Okay, how to deal this? This we have to show separately in your statement of P&L. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा दिया provision for discount on debtors 5,643. It's very simple. And at second place, this will also be reduced from the debtors. वो सबसे लास्ट में आप करते हैं. Minus provision for discount on debtors. That is 5,643. Just check the calculation. 1,82,457. Is that clear, students? Did you understand what we have done? कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया है? अभी हमारे पास 1 और 2 मिनट हैं. ठीक है, अगर नहीं आया तो आई कैन एक्सप्लेन यू वंस अगेन. ठीक है, एक बार फिर से देख लो. अपने आप से तो नहीं कहेंगे, बट आई नो इफ आई पुट अप द क्वेश्चन हार्डली. चलिए ठीक है. लव सीक्वेंस क्या है? द जिस्ट ऑफ दिस टॉपिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स. ओके,
The gist of the topic is first we adjust the bad debts, then we adjust provision for bad and doubtful debts, and then at last provision for discount on debtors. Not necessary that you get all the information in one question. If suppose provision for bad debts is missing from here, ये वाला आपका सेगमेंट नहीं दे रखा है, ये वाली स्टेज नहीं है, तो डायरेक्टली यू कैन कम ऑन दिस स्टेज, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है. बट सीक्वेंस आपका यही रहेगा, ठीक है. फर्दर बैड डेट्स को आप डेटर्स में से माइनस करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को माइनस करेंगे, सारे प्रोविजंस माइनस करके लास्ट में आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है. एंड सम टाइम दिस इज ऑल्सो पॉसिबल स्टूडेंट्स, यहाँ पे नहीं दे रखा है कि आप जैसे फर्दर बैड डेट्स है तो क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया हो सकता है, तो दिस क्वेश्चन इज नॉट कंटेनिंग दैट, बट माइट हैव you might have certain other questions there you can get, तो I'm explaining here only. अगर यहाँ पे आपको डिस्काउंट दे रखा है, that means that discount has already adjusted from here. ध्यान दो, ये नई चीज है वैभव, वो डिस्काउंट इसमें से ऑलरेडी माइनस हो रखा होगा, ठीक है. लेकिन अगर नीचे दे रखा है आपको फर्दर डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट भी आप माइनस करके फिर आप ये वाला प्रोविजन बनाएंगे. ध्यान दो, प्रोविजन को बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी बनाते हैं, तो डिस्काउंट जो फर्दर डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट से तो आपके डेटर्स कम हो गए, तो वो आप माइनस करके फिर वो वाला प्रोविजन क्रिएट करते हैं. तो दीज पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड यू विल हैव सम क्वेश्चंस सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस. ओके, आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस होंगे, ठीक है, फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल होगा, उसके बाद डिस्काउंट वाला होगा. सो दिस डे वी कैन डू दैट. Entries we have discussed in the previous videos, you can watch. Okay, so I think it's sufficient for today, or should I tell you the entries? We have still 2 minutes. Okay, if we have to pass these things, they are asked for the journal entry, then what to do? Provisions are having which balance, debit or credit? Provisions are having credit balances. You can see here provisions are having credit balance. अगर मुझे इस क्रेडिट में से ये बैड डेट्स कवर करने हैं डेबिट वाला, तो मैथमेटिकली देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, कर लिया था हमने पहले. ओके, दिस वे वी कैन डू, बट इन अकाउंटेंसी हाउ टू डू दैट, वी डू द रिवर्स थिंग्स. प्रोविजन में से मुझे कवर करना है, तो प्रोविजन को हम क्या कर देंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स. बैड डेट्स को क्रेडिट कर दिया, रिकवर हो गया, कितना, 3600. इज दैट ओके? आपके फर्दर बैड डेट्स हो गए हैं, तो इसकी क्या एंट्री होगी, बैड डेट्स होने की क्या एंट्री होती है, डेटर्स. बैड डेट्स की एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. बैड डेट्स आपका लॉस है तो दैट विल बी डेबिटेड, एंड डेटर्स आपकी असेट्स है, कम हो गई है तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया है, ठीक है. दिस इज द एंट्री ऑफ योर फर्दर बैड डेट्स. नाउ these further bad debts where to cover from, these will also be covered from provision for bad and doubtful debts में से आप कवर करेंगे, ठीक है. तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैड डेट्स आपके डेबिट थे, तो once again the same entry will be there, provision for bad and doubtful debts account debit to bad debts. This way you will be doing. आपने जो प्रोविजन क्रिएट कर लिया है P&L में हमने किया था, ठीक है, उसकी क्या ट्रांजेक्शन होगी, द ट्रांजेक्शन इज वेरी क्लियर, P&L के डेबिट की तरफ किया था, सो एंट्री हो जाएगी P&L account debit to provision for bad and doubtful debts, ठीक है. आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट किया है, ओके, उसकी क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट. ऑलराइट, so this adjustments we have completed all these adjustments, so you have to do the practice. First do all the illustrations, okay, and then jump at the back questions so you can understand how to deal with all these problems. And sometimes students, one more point that's very important, as we have calculated, so we have a positive figure and we show it here कि आपके पॉकेट में 1900 बच गया था, ठीक है. एग्जाम्पल ध्यान है ना, 9900 was my new provision and मेरी पॉकेट में कितना बच गया, 1900 बच गया था. तो क्या किया मैंने, my mama has given me 8000 rupees to keep my provision intact. Okay, समझ आ गई ये बात. Now in this example only I'm just doing a little change so you can understand that situation also. Well, my previous provision was 17,500 suppose, ठीक है.
बना लिया, मेरी मर्जी। 17,500 मैंने बना लिया, तो सीधा सीधा कितना इंक्रीज कर दिया मैंने, 10,000। तो सारी कैलकुलेशंस के बाद मेरी पॉकेट में कितना बचा, 1900 प्लस 10,000, तो कितना बचा, 11,900। समझ आ रही है बात वैभव? प्रोविजन मैंने इतना ज़्यादा बना लिया, 17,500 का बनाया, पहले आपका ये माइनस हुआ, ठीक है। लोकेश इधर देखो बेटा, इतना प्रोविजन था, पहले 3,600 माइनस हुआ, फिर उसके बाद 2,000 माइनस हुआ, कितना माइनस हो गया, जो भी हुआ है, ठीक है। तो अब आपके पास कितना बचा हुआ है पॉकेट में, 11,900। कैलकुलेशन में मैंने 10,000 जोड़ दिया ना, आर यू गेटिंग? यस। सो व्हाट इज इन माय पॉकेट, 11,900। मैंने प्रोविजन बनाया इस साल का, कितना बनाया, 9,900। तो मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। किस लिए चाहिए, प्रोविजन, आई मीन पार्टी है, ठीक है, पार्टी के लिए पैसे मांगे। कहा कितने, आपने क्या कहा, 9,900। तो मम्मी ने कहा ठीक है, आपको मिल जाएंगे 9,900। पहले अपनी पॉकेट दिखाओ, पॉकेट दिखाई तो उसमें कितने निकले, 11,900। मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, यू टेक 9,900 एंड रिटर्न मी द बैक वन। कितने बचे, 11,900 आपकी पॉकेट में थे, 9,900 आपको पार्टी के लिए चाहिए हैं, 2,000 बचे हैं। तो 2,000 क्या करेंगी मम्मी, आपसे ले लेंगी। हो गया आपका प्रोविजन पूरा, हो गए खुश, ठीक है। नाउ हाउ टू शो, यस प्लीज, हाउ टू शो इन द P&L? Absolutely same method, but now you will be showing in the credit side. क्यों क्रेडिट साइड, कि गेन हो गया ना बिजनेस को, मम्मी को फायदा हो गया ना, कि पहले तो देना पड़ रहा था, पिछले वाली ट्रांजैक्शन में 8,000 दिए थे, लॉस था, एक्सपेंसेस था, डेबिट में दिखाया। अब मम्मी को फायदा हो गया, मम्मी मीन्स बिजनेस, उनको फायदा हो गया तो उन्होंने क्रेडिट में दिखा दिया। इज दैट क्लियर? नाउ डू ऑल दीज थिंग्स योरसेल्फ सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर, राइट? So those who are staying at home, take care students and complete these questions properly. If you have some doubt, you may ask. Thank you.